we are going to go after sustainable development into what is called sustainable agriculture. First is, why do we need to have the concept of sustainable agriculture? ऐसा कुछ खास होता नहीं एग्रीकल्चर में. आप कहीं भी पौधे लगाइए, आप जो भी पौधा लगाएंगे वो उगेगा and you will get the food that you need to eat. Not only that, from the time of the later Vedic period, we have been cultivating crops. But the need for sustainable agriculture has arisen because of a number of climatic changes that have come solely because of the practices of one animal, which is the humans. We have over the years, due to our practices, got into a condition where there is a huge amount of climate change, particularly from emissions of carbon dioxide and nitrous oxide, which is raising the temperatures of the earth. Our practices are overcropping and overgrazing. यानी कि हमने अपने जानवरों को इतना चराया है और हमने इतने ज्यादा एक ही एरिया में पौधे उगाए हैं या अपने खाने के समान पदार्थ उगाए हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी एकदम रिड्यूस हो गई है and there are vast areas which are under desertification. So agricultural practices all over the world are responsible for 14% of the greenhouse emissions. Agriculture practices are responsible for 14% of the greenhouse emissions. If I cannot be heard, please just let me know by dropping a comment, because my earphones are going on and off. So I just want to know that I can be heard. So 14% of the global greenhouse emissions, which are caused the GHG, the greenhouse emissions, are from our agricultural practices. We are using more than 26% more of pesticides than which is permissible. We are using 26% more pesticides than what is permissible. 50% of our habitable land, यानी कि जो हमारी रहने की जगह थी, उसको हमने farming land में convert कर दिया है. 50% of our habitable land has been converted into farming land. 48% of the river waters have been polluted as a result of the agricultural practices all over the world. Please remember, these are world statistics. अभी हम इंडिया की statistics पे नहीं आए हैं. This is world statistics. So world statistics के हिसाब से 14% of greenhouse emissions, 26% of more pesticides, 50% of habitable land gone into farming land, and 48% of river water has been polluted. Also, 12 million hectares of land has been converted as a result of desertification. Desertification क्या होता है? Desertification is simply the on march of the desert. और जब ये on march of the desert होता है, it necessarily does not mean a sandy desert. It can just mean vast tracts of land where nothing can grow. And this happens when there is the top soil cover gets eroded. So there is soil erosion. The water table gets reduced or lowers down because there is no replenishment. मतलब जो soil होता है वो पानी सोखने की capacity ही खो देता है because of the loss of top cover, because of multiple cropping or overgrazing. तो वहाँ कोई पौधा उग नहीं पाता. तो 12 million hectares of the Earth's land has been subjected to desertification. और कह रहे हैं कि अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, जो कि हम नहीं कर रहे,
तो बाय 2050 we are going to be converting 120 million hectare of land into farmland. अभी तो 50% लैंड इज ऑलरेडी अंडर एग्रीकल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो हमारे लिए 50% रहने के लिए होना चाहिए वो फार्मिंग में चला गया है. और आगे अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस नहीं अपनाएंगे तो 120 मिलियन हेक्टेयर will be converted into farmland by 2050. अब इंडिया कितना ग्रीन हाउस प्रोड्यूस करती है फ्रॉम एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर? 18% of the GHG, which is your greenhouse gases. इसका GHG जहां भी पढ़िए वो ग्रीन हाउस गैसेज है. और ग्रीन हाउस गैसेज 18% हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से एमिट होते हैं. अब ये जो 18% ग्रीन हाउस गैसेज हमारे यहाँ से एमिट होते हैं उनके कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण, व्हेन ड्यू टू राइस कल्टिवेशन. जब हम अपने यहाँ सीडलिंग्स प्लांट करते हैं तो आपने देखा है कि जो राइस की सैपलिंग होती है वो स्टैंडिंग वाटर में प्लांट की जाती है. तो जब वो स्टैंडिंग वाटर में प्लांट की जाती है तो उस समय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉट एरोबिक बिकॉज देयर इज वाटर. तो हमने जब आपको पढ़ाया था दैट वी आर डीलिंग विथ लाइक क्रॉप्स लाइक सुंदरी विच वर फाउंड नियर द सी शोर्स. तो उनके यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है क्योंकि वाटर की वजह से प्लांट्स कैन नॉट ब्रीथ फ्रीली. So because of the standing water, there is anaerobic respiration, and as a result of anaerobic respiration, there is a lot of emission of CO2. तो एक सबसे बड़ा कारण हमारा होता है राइस कल्टीवेशन जिसमें CO2 बहुत प्रोड्यूस होता है. फिर आपने देखा है हरियाणा, पंजाब में जहाँ पे इतना ज्यादा शोर होता है जैसे ही विंटर्स खत्म होने होते हैं और आपकी राबी क्रॉप का हार्वेस्टिंग होती है तो उस समय जो क्रॉप्स का जो लेफ्ट ओवर प्रोड्यूस होता है उसको जलाया जाता है. जब उसको जलाया जाता है देयर इज एन एक्सेसिव प्रोड्यूस ऑफ CO2, ऑफ मीथेन गैसेस, ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, all of which are responsible for polluting the atmosphere and leading to greenhouse gases and increase of the earth's temperature. So because of these practices that we have, agriculture is the third largest producer as a sector for greenhouse gases after the industries which are there, and of course जो we talk of infrastructure जहाँ पे की भी अपनी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन होता है. जब हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो यूरिया इज द नॉर्मल फर्टिलाइजर दैट वी यूज, एंड व्हेन वी यूज यूरिया देयर इज अ ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड. ऐसे ही क्रॉप रेसिड्यूज से आपको नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है. और जब आप एग्रीकल्चर में पंप सिस्टम यूज करते हैं इरिगेशन के लिए तो उस समय आप एनर्जी फ्यूल कंजम्पशन जो करते हैं उससे 70% ऑफ एमिशंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो भी ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा देते हैं. सो यू हैव दीज ट्रेडिशनल पंप सेट्स फॉर इरिगेटिंग लार्ज एरियाज ऑफ फील्ड वेयर यू पंप अप द वाटर and the resulting fumes set off a chain reaction due to which greenhouse gases are produced और उससे हमारा पर्यावरण जो है बहुत ज्यादा पोल्यूट हो जाता है. अब if we want to define what is sustainable agriculture, I would say that it is an integrated system of plant and animal production practices. What is sustainable agriculture? Sustainable agriculture is an integrated system of plant and animal production. तो आप agriculture को when you read it in the context of sustainable agriculture, it only means that it is kind of practices for both plant and animals that have a site specific application. Sustainable agriculture is an integrated system of plant and animal production practices having a site-specific
एप्लीकेशन। तो अब यदि आप क्रॉप कल्टीवेशन राजस्थान में करेंगे और यदि आप क्रॉप कल्टीवेशन हरियाणा पंजाब में करेंगे या गैंजेटिक प्लेन्स में करेंगे, तो वहां की जो एरिया है, वहां का जो सॉइल है, उसके स्पेसिफिक आप क्रॉप प्लांटेशन करेंगे या आप वहां पे जानवर रखेंगे। तो वो जो आप एप्लीकेशन उस साइट पे करेंगे, ताकि फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, for the maintenance of a sustainable environment, for the use of existing non-renewable sources of energy in a planned manner, and to satisfy the human needs so that there is a good quality of life for the people on the earth. तो इसमें आपको क्या क्या पैरामीटर्स मिले? सबसे पहला पैरामीटर is that you're going to use your natural resources in a sustainable way, मतलब आप भी यूज कर सके, आगे वाली जनरेशन भी उसको यूज कर सके। Second is you want to enhance the quality of these natural resources, ताकि for every bit of resource that you use there is a higher yield, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। आप इस प्रकार से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। उसके बाद आपकी प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए कि ये इकोनॉमिकली वायबल हो, मतलब जो किसान है वो इस प्रकार से उत्पादन करे या इस प्रकार से जानवर पाले ताकि वो जो भी इन्वेस्टमेंट करे उस पे उसको एक रिटर्न मिल सके और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। So it's an integrated system of plant and animal production practices having a site-specific application so that we can satisfy the human need for food, for fiber, to enhance the quality of natural resources, for sustainable use of natural resources, for economic viability, and enhance the quality of life. Along with this, the non-renewable sources should be used in such a manner that they can be utilized by our future generations. अब हमको किस प्रकार की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए ताकि we can do sustainable agriculture. Before I go into this, I wanted to emphasize that I have posted in the group an article which is on bamboo cultivation and why bamboo cultivation should be practiced in the Northeast. And then I have put today an article from the Deccan Herald which says that the government has taken a decision right now in April to indulge in what is called oil palm cultivation. Now if we choose bamboo versus oil palm cultivation, और जब मैं आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रही थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो अपने पास प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं जिनके ऊपर एक रोक लगाई थी सरकार ने कि आप इन ट्रीज को बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन के नहीं काट सकते, उस कैटेगरी में बैम्बू भी आता था, पर अब वो इस कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है। इसका मतलब आप बैम्बू का प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप बैम्बू को प्लांट कर सकते हैं और आप उससे इकोनॉमिकली वायबल कोई भी प्रपोजल ले सकते हैं। सो इट्स वेरी गुड फॉर द फार्मर्स एंड बैम्बू कल्टिवेशन इज प्रेफर्ड बिकॉज इट्स अ नेचुरल सब्स्टिट्यूट फॉर वुड। वन इज दैट। टू, इट इज यूज्ड वास्टली इन पेपर प्रोडक्शन। फिर उसका जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, मतलब जो उसकी कैपेबिलिटी है कार्बन सिंक एक्ट करने की, वो किसी भी और पौधों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और बैम्बू के कल्टीवेशन से आपका सॉइल रिटेंशन, वाटर रिटेंशन भी होता है। तो इन द इकोलॉजिकल साइकिल बैम्बू इज द मोर बैलेंस्ड प्लांट एज कंपेयर टू ऑयल पाम कल्टीवेशन। अब ऑयल पाम कल्टीवेशन इज द monoculture practice of agriculture. It is monoculture is never considered a sustainable agriculture practice. Why is it not considered a sustainable agriculture practice? Because as soon as you plant only one crop, large areas are subjected to a loss of biodiversity. Two, आप oil palm की जो requirements है, it needs a huge amount of water during the summer months. उसके लिए आप एक आर्टिफिशियल इरिगेशन का सिस्टम सेट करेंगे, तो जो वहाँ की नेचुरल इकोनॉमी है नॉर्थ ईस्ट की, वो बहुत डिस्टर्ब होगी। रीजन बीइंग,
अब आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे होंगे कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ delayed monsoons. There is one called the monsoon burst. जब monsoon एकदम अपने टाइम पे आता है और बहुत जल्दी से आ जाता है. And then there is a concept of delayed monsoons where instead of coming in the last week of May and the first week of June, it gets delayed to the last week of June. And because of the El Nino factor, monsoons are also becoming unpredictable. With that kind of a scenario, oil palm production is not advisable in the Northeast. And this is what the environmentalists are saying. If you equate this practice with what was indulged in the Amazon basin, if you recall, Amazon basins are called the lungs of the earth. Those forests are called the lungs of the earth. They are responsible for 25% of the oxygen supply on the earth. And how were the Amazon forests reduced? Both in the Northeast and in the Amazon forest, you had the practice of shifting cultivation. जहाँ पेड़ काट करके और फिर आप एग्रीकल्चर करते थे, पर उससे उतना लॉस नहीं होता है जितना आप पूरा का पूरा पेड़ काट डालते हैं और फिर एक ही तरह के क्रॉप ग्रो करते हैं. दिस इज द सेम मिस्टेक which had taken place in the Amazon basin when vast areas of lands had been cleared to grow which crop? Soybean. So because of the soybean cultivation, we have lost the biodiversity of the Amazon forest to the extent to almost 25%. So you have to keep that in mind, and that is why I have posted that article today. Coming back to sustainable agriculture practices in India, what are certain practices that we can do so that we can control our expenditure on chemical fertilizers, on pesticides, retain the soil moisture, और जब भी आप soil sustainable agriculture की बात करेंगे, these are some of the pointers which you must remember. So I'm writing sustainable agriculture as A. Sustainable agriculture की practices कैसी होनी चाहिए? Your practices should be such that 1. Soil erosion does not take place. Can I be heard? I want to know if I can be heard. Okay, great. Thank you. So sustainable agriculture, कभी भी आपको आंसर मिले, आपको लिखना हो तो हर समय याद रखिए कि it should be able to prevent soil erosion. It should be able to prevent soil erosion. One is that. 2, it should lead to a reduction in artificial fertilizers. ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आपको यूज ना करना पड़े. ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए दैट आपकी पर हेक्टर यील्ड YIELD पर हेक्टर यील्ड आपकी बहुत ज्यादा हो. Then you should be able to retain the moisture of the soil. The moisture of the soil. There should be no water runoff. No water runoff क्या होता है? There should be no water runoff. No water runoff का मतलब होता है कि आपके पास बारिश हुई और बारिश होने के बाद वो पानी पूरा जमीन में सोख लिया, so that कि soil का भी moisture retain रहे और as a result of it आपका water table भी maintained रहे. So these are some of these things which are universally there for all parts of sustainable agriculture. तो आपको मैं various practices बताती जाऊंगी, and those concepts are important in your prelims paper. There was a question on sustainable agriculture in 2017. There was another question in 2018.
ऑन वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो मैं आपको बहुत सारे वो कॉन्सेप्ट्स है वो बताऊंगी, आप उसको एक करके समझते जाइए और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा। जब आप मेंस में जाएंगे तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, वो प्रैक्टिसेस क्या है। बट फॉर ऑल कॉन्सेप्ट्स दिस प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर will include all this and plus reduce greenhouse gas emissions। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर में which is important for us to engage in sustainable agriculture? So the first practice is called mulching. Mulching is mulching। mulching mulching की प्रैक्टिस क्या होती है कि आप टॉप सॉइल के ऊपर किसी भी प्रकार का एक कवर प्रोवाइड कर दीजिए। दिस कवर कैन बी ऑर्गेनिक ऑल्सो, इट कैन बी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, और इट कैन बी by means of a plastic। और इसको क्या जरूरत है आपको सॉइल को कवर करने की? It's mulching is the practice of providing a cover over the top soil so that the impact of the environment in terms of rain is less, so that the crops are protected, there is less of soil erosion, there is less of attack by pesticides। इस वजह से आप मल्चिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप नेचुरल ऑर्गेनिक मल्चिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं सॉइल में? आप कंपोस्ट ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ काउ डंग। समटाइम्स आप कभी जो घास जब आप छीलते हैं तो घास में से जो आपको रेसिड्यूअल रहता है वो आप पौधों के ऊपर छिड़क देते हैं, या सॉडस्ट होती है, जैसे आप वुड का काम करते हैं तो जो फिर जो छोटा सा जो सारा बुरादा आपको मिलता है वो आप सॉडस्ट डाल देते हैं प्लांट्स के ऊपर, या आप न्यूज़पेपर को श्रेड करके प्लांट सॉइल के ऊपर कवर प्रोवाइड करते हैं। इस कवर को प्रोवाइड कर देने से what happens is that the soil is able to retain the moisture, it comes less under the impact of pesticides and outside agencies। और जब आप ऑर्गेनिक मल्चिंग यूज करते हैं मटेरियल तो वो जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता जाता है वो उसको भी नेचुरली सॉइल में डिकम्पोज करता है और यूज हो जाता है। कभी कभी आप मल्चिंग की प्रैक्टिस में बड़े बड़े प्लास्टिक्स यूज करते हैं, एंड देयर इज अ होल क्वेश्चन बीइंग रेज्ड अबाउट द एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस ऑफ दीज मल्चिंग प्रैक्टिसेस वेयर यू यूज प्लास्टिक्स, बट समटाइम्स यू यूज डिग्रेडेबल plastics also। So mulching, when I said, is the mulching is the protective layer of soil। ये आपको हेल्प करता है मॉइस्चर रिटेन करने में। सेकेंड, प्रोटेक्ट करता है प्लांट फ्रॉम कॉम्पैक्ट। थर्ड, ये आपके जितने बड़े वाले जैसे रोडेंट्स हैं तो उनके अगेंस्ट ये एक बैरियर की तरह भी एक्ट करता है, और ये वीड्स भी कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स वीड्स ऑल्सो। सो mulching is one practice which can be adopted for sustainable agriculture। That is the first part. Now the second one is called, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में मैंने आपको पहले लिखा दिया मल्चिंग। अब सेकेंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज कॉल्ड जीरो टिलेज। जीरो टिलेज, व्हाट इज जीरो टिलेज? जीरो टिलेज इज व्हेन नॉर्मल प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि आप पौधा मतलब क्रॉप ग्रो करने से पहले मैकेनिकली आप सॉइल को टिल करते हैं और फिर आप उसमें बीज डालते हैं। When there is a system of zero tillage, what do?
you do not mechanically impact the soil at all. आप जो है अपने जो जमीन है उसके में आप सॉइल को किसी भी प्रकार से, जैसे ट्रैक्टर के माफिक से वो जो आप पीछे से खींचते हैं या बैल द्वारा आप खींचते हैं ताकि सॉइल ऊपर नीचे हिल जाए, वो बिल्कुल नहीं करते. आप सीड्स यूज करते हैं थ्रू स्पेशल इम्प्लीमेंट्स, जिसको कि हमारी जीबी पंत यूनिवर्सिटी ने भी बनाया है इंडिया के लिए. पहली बार उन्होंने ही टिलेज के इक्विपमेंट बनाना शुरू करा, और इसमें यू डू नॉट यूज अ मैकेनिकल मीन्स ऑफ ब्रेकिंग द सॉइल टू प्लांट द सीड्स. आप खाली सिंपली जो है आप एक they have made a kind of an equipment which gently plants the seeds into the soil without affecting anything in the soil. तो अगर soil में जो भी natural weeds है, natural compost है, आपका जितना जैसा सिस्टम सेट है वो वैसे ही रहता है, और बस आप उसमें बीज डाल देते हैं थ्रू वेरियस मीन्स. अब इसमें आप क्या क्या चीजें सेव करते हैं. एक तो 80% ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्शन इज reduced. I hope you understood what is the concept of zero tillage. Here the seeds are planted. Seeds are planted through drillers. Seeds are planted through drillers. There is no mechanical impact. No mechanical impact of the soil. There is no soil preparation. There is no soil preparation. तो इससे क्या होता है, इस प्रैक्टिस से क्या हो जाता है, जब when there is no soil preparation, तो इस प्रैक्टिस से you are able to reduce your cost for soil preparation by almost 80%. और आप क्या करते हैं, क्योंकि आपको कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है कि इस फील्ड को प्रिपेयर करना है, आप कंटिन्यूअसली क्रॉप ग्रो कर सकते हैं. तो जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है उसमें ये प्रैक्टिस अपनाई गई. एंड व्हाट डू यू डू इन दैट, यू हैव अ खारिफ क्रॉप राइस. आपका एक खारिफ क्रॉप है राइस, और आप राइस के साथ साथ क्या करते हैं, जैसे ही आपने राइस को हार्वेस्ट किया एज अ खारिफ क्रॉप, आप वीट लगा देते हैं. और वीट फिर आप लगाने के बाद दिस इज नाउ बिकम्स अ राबी क्रॉप. और फिर ये जैसे ही आपने हार्वेस्ट किया उसी फील्ड में आप फिर खारिफ क्रॉप राइस का लगा देते हैं. सो देयर इज नो मैकेनिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व, देयर इज नो प्रेपरेशन ऑफ द फील्ड. सो फर्स्ट इज योर मल्चिंग, जिसमें आप टॉप सॉइल पे कवर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल मॉइस्चर जो होता है सॉइल में रिटेन होता है. प्लांट्स को बाहर का एनवायरनमेंट से, गस्टी विंड से, ज्यादा तेज बारिश से बचाव हो जाता है, बड़े बड़े रोडेंट से भी बचाव हो जाता है, और वीड से भी बचाव हो जाता है. फिर आप नो टिलिंग करते हैं. नो टिलिंग से क्या होता है कि आपकी फील्ड एकदम रेडी है, अभी आपने हार्वेस्ट किया, आप कल फिर से बीज डाल सकते हैं. तो आप कोई मैकेनिकली सॉइल को अपसेट नहीं करते, सीधे डायरेक्ट वापस से सीड डाल देते हो. इसमें फार्मर्स का पैसा बहुत ज्यादा बचता है. तो इंडो गैंजेटिक प्लेन में ये बहुत दिन से प्रैक्टिस थी. However, later on what happened was that they started delaying the plantation of wheat. So when they started delaying the plantation of wheat, this cycle has got a little disrupted. It is also being practiced in Punjab and Haryana to some extent. So because of this delayed practice of the winter wheat, it has been offset. Otherwise, it is one of the practices of sustainable agriculture. Now we come to something which is called the irrigation systems that have to be used in terms of sustainable agriculture. तो अब जब आप इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं तो आप क्या यूज करेंगे? इरिगेशन प्रैक्टिसेस में यू विल यूज माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिसेस. माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिसेस में आपके पास क्या क्या आता है? माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिसेस में आपके पास आता है
something called the zincs. मैं आपको वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिसेस बता रही हूँ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ताकि यू नो micro irrigation practice will not come. What will come is these concepts, these words will come. So you should know what are the micro irrigation practices. तो पहले micro irrigation practice मैं आपको बता रही हूँ, इसको the ZINGS, ZINGS. क्या होता है कि अपने पास high mountainous region में, like for example, ZINGS is being practiced in Ladakh. यहाँ पे क्या होता है, the glaciers are always melting. तो इन्होंने यहाँ पे छोटी छोटी इनंडेशंस बना दी है ग्लेशियर्स के पास, जो उनकी वाटर होती है वो इस इनंडेशंस के थ्रू जेंटली एक टैंक में आके पानी गिरता है. तो पहले वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है. तो ड्यूरिंग द मॉर्निंग दिस इज ऑलमोस्ट फ्रोजन एंड इट्स अ स्मॉल ड्रॉप, पर डे में जैसे मेल्ट होता है ग्लेशियर, ये रन ऑफ जो है ज्यादा हो जाता है और ये टैंक में आके जमा होता रहता है. और ये टैंक्स जो वहाँ यूज होते हैं इनको जिंक्स कहते हैं. और इसका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमारे यहाँ सरपंच होता है, वैसे उनके यहाँ इसको कहते हैं चरपून. इट इज कॉल्ड द चरपून. दिस पर्सन विल डिसाइड हाउ मच ऑफ वाटर फ्रॉम दीज टैंक्स विल बी टेकन बाय ईच ऑफ द विलेजेस. तो ये विलेज, छोटी छोटी विलेजेस को कॉमन एक टैंक बनाया जाता है और जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट होता है उसका थोड़ा थोड़ा पानी इसमें स्टोर किया जाता है एंड देन दीज आर बीइंग यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. दिस इज वन काइंड ऑफ माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिस. Another kind of micro irrigation practice is called the pioneers. It's called the pioneers. अब pioneers में क्या होता है? pioneers जो है ये सिर्फ मैक्सिमम 10 to 20 किलोमीटर की रेंज में यूज हो सकता है. इसमें जहां पे आपके पास एक बड़ा रिवर सिस्टम है कहीं पर, तो आस पास की विलेजेस वहां से एक छोटी सी नहर निकाल लेती हैं और या एक वे बना लेती हैं और उसकी थ्रू दैट नहर दे आर एबल टू टेक वाटर टू देयर फील्ड्स. सो दिस कैन नॉट बी फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. It's only about 10 to 20 kilometers from the main river. Again, it is being practiced in a northern plains to a large extent, जहाँ पे कि बहुत बड़ी बड़ी आपकी river systems है. तो जब पाइनीज में जब ये होता है, तो what you do, you build a kind of a small canal. It's a small canal which reaches to your fields, and the water drains from the rivers naturally into it. So they are called the pioneers. दूसरा एक सिस्टम है जिसको कहते हैं आहार. अब आहार is being used as a micro irrigation system in South Bihar. यहाँ पे थोड़ा सा hilly है, means there is an almost, the terrain is such that there is almost an increase of about 1 meter for every kilometer that you travel upwards. तो ये जो natural gradient है, इसको यूज करके आप 3 साइड से एम्बैंकमेंट एक बना रहे हैं. और उससे क्या होता है कि जैसे ही आपके पास ये स्लोप है और यहाँ का सॉइल सैंडी होता है, तो जहाँ वाटर अक्यूट शॉर्टेज है, जैसे ही बारिश होती है और आपको पानी आता है, तो जो आहार का कैचमेंट बेसिन है वो उस वाटर को अपने पास रोक लेता है. एंड दिस इज बीइंग यूज्ड और in a big way for rabi cultivation in and around Bihar. Then there is another system of micro irrigation which is called the khadins. Khadins is being used in and around Rajasthan, and it was first propagated by the Brahmins of Jaisalmer. इसमें जैसलमेर के लोगों ने क्या किया था, और ये 15th सेंचुरी में जो पालीवाल ब्राह्मण्स है जैसलमेर के, दे एस्टैब्लिश द खादिन सिस्टम. इसमें ये क्या करते हैं कि 100 से 300 मीटर का एक अर्थ एम्बैंकमेंट बनाते हैं लोअर हिल स्लोप्स पे, और जैसे जैसे वाटर आता है वो इसमें इकट्ठा हो जाता है, एंड थ्रू मीन्स ऑफ स्लुइसेस एंड पाथवेज ये वाटर जहां भी जरूरत होती है जाता है.
So they also make embankments और gravel and sand, जहाँ पे कि water retain होता है, और फिर ये sluices के द्वारा खादिन से निकल करके वो जहाँ water collected है catchment area का, उस through sluices it is supplied to all the villages or wherever it is required. Another very popular system is called the Eris in Tamil Nadu. In fact, बिना इरीज के तमिलनाडु में किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है. तो इरीज में क्या होता है कि there should be no wastage of water and soil erosion is prevented by इरीज. जैसे जैसे बारिश गिरती है, the farmers contribute money for the maintenance of these इरीज. ये नेचुरल इन्होंने फ्लड एरियाज में बनाए हुए हैं. You can call them a kind of a pond or a tank through which water flows in the paddy fields during the dry summer months. तो जो winter rains होती हैं तमिलनाडु की, उससे ये पानी पहले रोकते हैं और उसको रोकने के बाद उसके थ्रू ये पैडी कल्टीवेशन करते हैं. So Eris is typical to what is called to the state of Tamil Nadu. Okay, Zing is typical to the Union Territory of Ladakh. Okay, Pinese is very popular in the northern plains. Ahar is popular in South Bihar. आपको ये नहीं पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि वो क्या चीज है, वो पूछा जाएगा कहाँ पर है और किस सिस्टम से वर्क करता है. तो यू शुड बी नोइंग दैट. फिर यू हैव द टंकास एंड द जोहार्ड्स. अब जोहार्ड्स क्या होती है? जोहार्ड्स आर योर big ponds which are erected or constructed in the villages. They are also constructed in places like Goa, in Karnataka, जहाँ उन्होंने beautiful tiles भी उसमें लगा रखा है और जो भी रेन वाटर आता है वो उसमें सोक होकर के रुक जाता है. कई बार बड़े बड़े घरों में आप देखेंगे कि उनका जहाँ कोर्टयार्ड होता है वहां भी बड़े बड़े ये आपको जोहार्ड्स मिलते हैं. तो जोहार्ड्स आर नथिंग बट बिग पॉन्ड्स फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर. बिग पॉन्ड्स फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर. आप इसे टैंक भी कह सकते हैं, बट दे आर नॉट आर्टिफिशियली क्रिएटेड. दे आर क्रिएटेड, दे आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड, बट दे आर क्रिएटेड इन द ग्राउंड. तो कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं यूज होती है. दे आर नेचुरली कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग आउट अर्थ and then you cement it all around so that water can be retained in this and used later. Then there are tankas. Tankas are round holes made in the ground to collect the rain water. और ये सारी चीजें जो है प्री कॉलोनियल टाइम में हुआ करती थी और इस वजह से ये आज भी अभी तक यूज हो रही हैं. So you have the johards and you have the tankas. ये भी आप इसमें भी आप जो है इसमें आप नेचुरल टोपोग्राफी को फॉलो करके करते हैं while in construction of the johards. नेचुरल टोपोग्राफी मतलब जिस तरह से आपका ग्रेडियंट होता है ग्राउंड का, उस प्रकार से आप एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं ताकि वाटर स्टोर हो सके. और जो आपके दिस इज फॉर द जोहार्ड्स. फॉर द टंकास वो आप बड़े बड़े होल बनाते हैं और उनको सीमेंट कर देते हैं ताकि इसमें आप पानी रोक सके. एंड ऑल दीज प्रैक्टिसेस ऑफ माइक्रो इरिगेशन हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन सिस्टम ever since the British or even before that. Now we are going to talk about something which is called as vertical farming. अब एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है जिसको कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग. First, what is the meaning of vertical farming? In vertical farming, there is no need of soil, and if you use soil, there's very little use of soil. Vertical farming is a kind of an integrated, intensive farming system. I'll repeat. It is an integrated, intensive farming
सिस्टम। इसमें आप लैंड का इस्तेमाल नहीं करते। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारे प्लैनेट अर्थ पे हुआ, वैसे वैसे हमारी पर हेक्टर यील्ड भी कम होती गई, और दूसरा यील्ड बिकॉज देयर वर मोर माउथ्स टू फीड, एंड दूसरा जो हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी थी वो भी रिड्यूस हुई बिकॉज ऑफ द increase of the human population. This led to a whole lot of new methods in farming and agriculture practice. Vertical farming is one of them. In vertical farming, you are cultivating in a vertical. Means आप क्या करते हैं, आप अगर vertical garden देखिए जैसे cities में होता है, तो यहाँ पे आपने छोटे छोटे गमले बना दिए और उनको कहीं hook कर दिया है. This is a very basic type of vertical farming. But it is being used as a measure for green cover. In fact, there is one income tax officer who's doing it in a wide way in the area in the state of Punjab and Haryana. I think his name is Rohit, or maybe I might be getting the wrong name, but I think his name is Rohit Bansal. I will Google and let you know the name. You can also Google and find out. He has been involved in a big way in these vertical gardens. In fact, वो plastic की bottles में पौधे लगा के और हर दफ्तरों में जहां भी जाते हैं वहां पर वो इनको लगाते हैं ताकि जो ग्रीन कवर है हमारा वो बढ़ता जाए। अब वर्टिकल फार्मिंग में आप क्या सबसे पहले क्या करते हैं, यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ अ फार्मिंग वेयर प्लांट्स आर ग्रोन इन लेयर्स। वर्टिकल फार्मिंग इज एन इंटीग्रेटेड इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड मतलब बहुत से तरह के सिस्टम्स एक संग कंबाइन किए जा रहे हैं वर्टिकल फार्मिंग के मेथड में। आई विल टेल यू द डिटेल्स। और इसी के साथ साथ दे आर ग्रोइंग प्लांट्स इन लेयर्स। सो दे आर ग्रोइंग इन वर्टिकल गार्डन फार्मिंग, दे आर ग्रोइंग प्लांट्स इन लेयर्स। वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट कब आया हमारे पास? In 1915. And this concept has been given by Gilbert Ellis Bailey. The concept of vertical farming was given in 1915 by Gilbert Ellis Bailey. अब Gilbert Ellis Bailey ने बोला कि इस प्रकार की फार्मिंग से by planting your vegetables or your flowers in layers, you are going to be able to save land for human consumption. So with that purpose in mind, he coined the concept of vertical farming. Or फिर again, there is a person by the name of William Frederick Garrick. William Frederick Garrick. So what happened was William Frederick Garrick has given us a type of vertical farming which is called hydroponics. What is it called? It's called hydroponics. So vertical farming as a concept was given by Gilbert Ellis Bailey, जिन्होंने कहा कि प्लांट्स को हमको एज अ लेयर प्लांट करना चाहिए ताकि हमको जमीन की जरूरत ना पड़े। The entire concept is that you don't need land for cultivation in vertical farming. And then under vertical farming, the concept of hydroponics has been given by William Frederick Garrick. Hydroponics क्या है? That I will just tell you right now. अब वर्टिकल फार्मिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है? एक तो यहाँ पे आपको हाई यील्ड, ऑलमोस्ट 80% ऑफ व्हाट यू गेट इन योर फील्ड कल्टिवेशन, उससे ज्यादा पर हेक्टर आपको मिलता है इन वर्टिकल फार्मिंग। दूसरा, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरमेंट, you don't have to worry about floods, you don't have to worry about droughts, you don't have to worry about pesticides or runoff or soil erosion.
there is no outside agency which is going to affect your crop cultivation or your vegetable cultivation, whatever you engage in. In fact, vertical cultivations are being used in a vast way for horticulture practices, growing fruits and vegetables, and especially greens. So organic farming is being indulged in by using vertical farming methods. तो आपने lettuce सुना है कि बहुत ज़्यादा यूज होता है. Small baby cabbages are being grown, small tomatoes are being grown, lots of flowers are being grown through these vertical farming methods. तो अगर आप vertical farming करते हैं तो आप एक तो अपनी yield 80% पर हेक्टेयर बढ़ा लेते. दूसरा, कोई भी आउटसाइड फैक्टर आपको अफेक्ट नहीं करता. आपको कोई मतलब नहीं कि क्या मौसम है बाहर, आपका पौधा अपने आप उगता रहेगा. तीसरी चीज, आपको कहीं भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं कि रूरल एरिया से आपको शहर सामान ढो के लाना है तो उसको जो ट्रांसपोर्ट में आपका सारा स्पॉइलेज होता है क्रॉप्स का, अगर एक्सेस क्रॉप्स हो गए तो उसका स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है वो सब आपको वर्टिकल फार्मिंग में नहीं होती. आपने पौधा अभी लगाया, वो उगा और नेक्स्ट डे इट्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर कंजम्पशन पर्पसेस. That is why I said it is being used in a big way in organic farming. आप इसमें बिल्कुल भी पेस्टिसाइड नहीं यूज करते, कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते. Also 90% of your money which was being spent in maintenance of fields, तो फार्मर का तो सारा समय अपना खेती बनाने में निकल जाता था. All those factors are cut off from वर्टिकल फार्मिंग. अब पर वर्टिकल फार्मिंग में और क्या चीजें की आपको जरूरत पड़ती है, ये तो इसके एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए. डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. सो यू नीड अ कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, यू नीड एलईडी लाइट्स, सो यू नीड अ टेम्परेचर कंट्रोल, यू नीड अ टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि पौधे आप जो लगाएंगे उसका वातावरण या एनवायरनमेंट तो आर्टिफिशियल है. ये कोई पौधे आपके धूप में तो उग नहीं रहे, या ऑल बीइंग ग्रोन इनसाइड. सो आपको टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट इज अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. तो ये कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. इन्वेस्टमेंट किसमें? इक्विपमेंट में. All of it is computerized and remotely controlled. कितना पानी कितने बजे किस पौधे में जाएगा, कितनी आप न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड करेंगे. एक जैसे हाइड्रोपोनिक्स है उसी तरह से एक एक्वापोनिक्स है. उसमें तो आप सॉइल यूज ही वाटर यूज ही नहीं करते. उसमें देयर इज नो यूज ऑफ सॉइल एंड वाटर. उसमें आप एक्वाकल्चर जो करते हैं उसी का पानी चला जाता है पौधे में और वो ही पानी रिसाइकल होता रहता है, इसलिए आपको अलग बाहर से कहीं पानी की जरूरत नहीं. बट ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी रिमोटली कंट्रोल्ड. तो अगर आप कैलकाटा में भी है तो वहां से 2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका सिस्टम कितना एलईडी लाइट, बिकॉज योर लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस is being replaced, means the sunlight is being replaced by LED lights. So there is some emission, बहुत emission नहीं होता है, there is some emission, but there is a lot of expenditure in terms of energy. तो आप बिजली बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और वो बिजली का भी प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है. It might be if it's a thermal source, it's a non-renewable source. आप अगर कोल यूज कर रहे हैं अपने बिजली के प्रोडक्शन में तो it's a non-renewable source. Same for nuclear energy. If you are using nuclear energy, that too also has an element of environmental pollution. So these are the disadvantages of it. But by and large, if you look at local practices, या कोई सिटी अगर वर्टिकल फार्मिंग में जाती है तो वो अपने भर का ग्रीन कवर प्रोवाइड कर सकती है, अपने भर की वेजिटेबल्स जो उसको ग्रीन चाहिए अपने पोषण में या अपनी डाइट में वो प्रोवाइड कर सकती है. इसमें कोई वाटर का वेस्टेज नहीं है. देयर इज नो नीड फॉर सॉइल प्रिपरेशन एंड इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बट यस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल्ड लेबर. और हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पास ये पढ़ाई का लेवल नहीं है कि वो कंप्यूटर एडेड प्लांटेशन कर सके. बट वर्टिकल फार्मिंग इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन अ बिग वे अब्रॉड. अब इसमें से वी विल बी फर्स्ट डूइंग व्हाट इज
हाइड्रोपोनिक्स। पहले आपको मैं बताती हूँ व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में यू नीड नो सॉइल, you need very little water. You need water, but it's very little. And then there is nutrients which are added timely to the water. Nutrients are added to the water. अब मैं आपको वर्टिकल फार्मिंग का एक डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश करती हूँ, शायद आप इसको अप्रिशिएट कर पाए। ये इस तरह से होता है यहाँ ये, और आपके यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं या गमले लगा दिए जाते हैं जिसमें से कि पौधे उगते हैं। यू मस्ट हैव सीन इट। इट्स अ वेरी पुअर डायग्राम बट जस्ट सी। ओके, सो दिस इज योर, ये आपका वो हो गया, गमला हो गया, और अब इसमें आप पौधे लगा देते हैं। Now in this system what happens is the water is being supplied through a system of channels, और ये इसी में आप न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऐड करने से पौधा अपने आप ग्रो होने लगता है। Now why does the plant grow very fast? Because when initially you plant a seedling, the seedling has to, they have the root system which goes deep inside the soil to search for water and for nutrients which make the plant grow. यहाँ पे कोई भी root को ये काम करना ही नहीं है। There is no kind of resistance from the soil because there is no soil. तो जो मेहनत पौधा करता था to fight for light, grow upwards and fight for light for system of photosynthesis, वो भी उसको नहीं करना। उसको नीचे रूट्स में नहीं जाना है, अंदर घुसना नहीं है कहीं जहां से उसको कि पानी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स आप रेडली उसको सप्लाई कर रहे हैं, पानी अपने आप से उसको मिलता जा रहा है, तो वो उसकी सारी एनर्जी है वो ग्रोथ में चली जाती है। सो योर साइकिल ऑफ ग्रोथ गेट्स रिड्यूस्ड। And nutritionally, these plants become dense. So they are nutritionally dense plants. Nutritionally dense plants. Nutritionally dense हो जाते हैं, इस वजह से आप इसको बहुत हद तक ग्रीन्स के कल्टीवेशन में यूज कर रहे हैं। Like I told you, lettuce, your spinach, your cabbage, your मेथी, your coriander, मतलब आपकी धनिया, उन सब में इसको यूज किया जा रहा है, और being used for organic farming. अभी मैं आपको बताऊंगी what is organic farming. So this is hydroponics. Hydroponics का सबसे बड़ा फैक्टर है you don't use any soil, you use water in a very restricted manner. The water has nutrients added to it on a timely basis. The plants grow very rapidly because there is no resistance from the soil. There are no pesticides, there are no weeds, there is no effort. But the investments are huge, so only very rich people can engage in this kind of an agriculture practice. ये हो गया आपका vertical farming का एक तरीका। दूसरा तरीका आपको बताया जाता है। Another kind of vertical farming is called aquaponics. अब आपका aquaponics क्या होता है? Aqua is your comes from aquaculture plus ponics. Aquaculture is when we are putting fishes and cultivating it in a restricted or in an artificial environment. So when we try to grow fishes in a controlled environment, we are doing what is called aquaculture. तो मतलब आप नदी और समुद्र में नहीं मछली उगा रहे, आप एक पॉन्ड बनाते हैं, एक तालाब बनाते हैं जिसमें आप मछली का उत्पादन कर रहे हैं. That is called aquaculture. So you are now trying to cultivate fishes
in a restricted environment. And what is ponics? Ponics is a Latin word. Ponics is a Latin word. This is spelled as P-O-N-I-C-S. Ponics. Ponics is a Latin word which means to work. So what happens in aquaponics? आप aquaculture का मतलब जो मछली का पानी है वो यूज कर रहे हैं for cultivation purposes. तो इस तरह का टैंक हो जाता है, एक तरफ मछली, यहाँ पे आपकी मछली आ जाती है. दिस इज योर aquaculture टैंक. और यही फिर यहाँ पे चली जाती है and is being used for plant cultivation. What is the principle behind aquaponics? In aquaponics, there is no runoff. There is no need for additional water. आप जो पानी जिसमें मछली का उत्पादन कर रहे हैं, उसमें जो फूड ऐड करते हैं, वो उसमें आप जब फूड ऐड करते हैं वो फिशेस कन्वर्ट करती हैं इनटू अमोनिया, NH3. ये जब अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो अमोनिया एक्ट्स लाइक अ नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर द प्लांट्स. तो यहाँ आपको कोई अलग से फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं, कोई पेस्टिसाइड कंट्रोल की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार का सॉइल की जरूरत नहीं. इनफैक्ट आपको पानी की भी जरूरत नहीं है टिल ये जो आपका साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि प्लांट भी पौधे भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू थोड़ा वाटर लूज करते हैं, एवेपोरेशन के थ्रू थोड़ा बहुत वाटर लूज करते हैं. Otherwise, aquaponics is a self-sustaining system where you are getting your fishes also through aquaculture, और उसी के न्यूट्रिएंट्स से, वो जो न्यूट्रिएंट्स है जब यहाँ जाते हैं तो वो पौधों को उगने में फायदा करते हैं. और यही पौधे, इफ यू रिमेम्बर द वेटलैंड कॉन्सेप्ट, वेटलैंड्स में जितने भी पौधे हैं वो पानी को क्लीन करते हैं. दे थ्रू द प्रोसेस ऑफ पर्कुलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज, they are able to retain whatever nutrients are not required in the water, और बाकी सारा पानी वो छोड़ते हैं, तो वो क्लियरिंग एजेंट की तरह काम करते हैं. तो यहाँ प्लांट्स इस एक्वाकल्चर के पानी को साफ करते हैं, और फिर ये पानी जब यहाँ जाता है तो इसमें अमोनिया ऐड होता है, अमोनिया वापस आता है, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को साफ करते हैं और मछली के पास वापस भेज देते हैं. दिस इज द सिस्टम ऑफ एक्वापोनिक्स एंड इट इज नाउ बीइंग वाइडली यूज्ड अब्रॉड, स्पेशली in the US, in Canada, also being used in the Southeast Asian countries like China, like Indonesia. I wanted to give you a specific example in India, पर मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं. If I get it, I will post it for you. Now there is something called permaculture. Permaculture is a concept, it's a practice where you have sustainable means of housing plus farming plus livestock. आप तीनों को मेंटेन करते हैं. तो मैंने जब इस पे रीडिंग करी तो आई केम टू रियलाइज इट इज बीइंग यूज्ड वाइडली इन कनाडा एंड यूएस, एंड डाउन टू अर्थ कहती है कि हम इंडिया में भी अब इसको बहुत अच्छी से यूज करेंगे, बट उन्होंने मुझे कोई केस हिस्ट्री नहीं दी. आई स्टिल ट्राई एंड सी इफ आई कैन गेट अ केस हिस्ट्री ऑन इट. व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड पर्माकल्चर? जिसमें आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यूज करते हैं विद मॉडर्न टेक्निक्स फॉर एंगेजिंग इन सच एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कि आपको उसी फार्म हाउस से अपने घर बनाने का सामान मिल जाए, अपने खाने का सामान मिल जाए और अपने जानवरों को भी खिलाने का सामान मिल जाए. बेसिकली it means that you become totally self-sufficient. So in the ice-bound regions where half the year the place is cut off because of ice, or where there are big farmlands and ranches, you are indulging or engaging inside this kind of permaculture
where you're using your traditional practices of water retention, micro irrigation, and at the same time, you are also using modern techniques to become self-sufficient and self-sustaining in farm practices. Permaculture में बस हमें इतना ही पता चला है. So now we have what is called intensive agriculture practices. Intensive agriculture practices में आपके पास क्या आता है? पहला आता है आपके पास इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आपके पास क्या आता है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आपके पास आता है पास्चर क्रॉपिंग. ओके, देन यू हैव व्हाट आई ऑलरेडी टॉट यू, एग्रो फॉरेस्ट्री. जब हम फॉरेस्ट की बात कर रहे थे तो आपने एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ा था, जिसमें कि फार्मर्स अपने जब उगाते हैं लाइक व्हीट एंड राइस, उसी के साथ साथ वो ऑर्चर्ड कल्टीवेशन भी करते हैं, मतलब फ्रूट्स भी उगाते हैं फॉर दैट पर्पस. अब पास्चर क्रॉपिंग में क्या होता है? द फर्स्ट वन, द पास्चर क्रॉपिंग, यू हैव ह्यूज ग्रासलैंड्स. तो उन ग्रासलैंड्स को आपने हटाया नहीं, उन्हीं ग्रासलैंड्स के बीच में आपने अपने ग्रेन क्रॉप्स आपके पास कौन से? ग्रेन क्रॉप्स आपके राइस हो गया, आपका व्हीट हो गया, आपके सारे मिलेट्स हो गए, आपकी सारी पल्सेस हो गए. These are all your grain crops. So in natural grasslands area, they have started now adopting this practice that instead of cutting off and preparing the field by removing the grass, what do? Is that they take their livestock, मतलब वो अपने जानवर ले जाते हैं जो अच्छे से इनको ग्रास को चर लेते हैं. पहले खूब अच्छे से चर लेते हैं, फिर उसके बाद वो ये ग्रेन क्रॉप्स लगा देते हैं. दे कल्टिवेट द ग्रेन क्रॉप्स, और जैसे ही ग्रेन क्रॉप्स उग जाते हैं उसके बाद वो वापस से जानवर लाते हैं और वो वापस से सब जगह चारा चर लेते हैं, एंड द फील्ड्स आर अगेन रेडी, एंड दिस सिस्टम कंटिन्यूज. नाउ इन दिस साइक्लिक सिस्टम, व्हाट इज द सेविंग फॉर द फार्मर के लिए ये सस्टेनेबल क्यों है? एक, उसको अपने जानवर के लिए फ्री का मिल गया खाना, तो उसको कहते हैं फॉरेज उसको फ्री का मिल गया अपने लाइफ स्टॉक के लिए, क्योंकि ग्रास अवेलेबल है. तो उसको अपने आप से काउ फीड या बफलो फीड या गोट फीड अपने आप से मिल गई, इवन बिफोर प्लांटिंग द क्रॉप एंड वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड. दोनों टाइप पे मिल गया. दूसरा, इसमें द बिग ग्रासेस इन द ग्रासलैंड, they are used as mulching for the purpose of mulching, मतलब ये क्रॉप के लिए कवर की तरह हो जाती है. तो इसकी वजह से जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स या रेन्स का इम्पैक्ट इन ग्रेन क्रॉप्स को डिस्टर्ब नहीं करता. सो दीज टू फैक्टर्स आर यूज्ड इन पास्चर क्रॉपिंग. इट्स कॉल्ड पास्चर क्रॉपिंग बिकॉज दीज आर ह्यूज ग्रासलैंड्स which are not being disturbed for the purpose of grain cultivation. उनको वैसे ही रखा जाता है, खाली जानवर पहले चर लेते हैं, फिर आप उसमें पौधे लगा देते हैं, और जब आपका राइस या व्हीट ग्रो हो जाता है तो आप वापस लाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और वापस आते हैं, जानवरों में फिर चरते हैं, एंड योर फील्ड इज रेडी. Agroforestry, I've already told you. Intercropping. Now, versus the monoculture that we have of planting a single crop, intercropping में आप बहुत सारे पौधे एक संग लगा देते हैं, ताकि हर क्रॉप का डिफरेंट साइकिल है हार्वेस्ट होने का या ग्रो करने का. इसमें खाली एक ही तकलीफ होती है, अगर आप बहुत सारे पौधे एक साथ लगा देते हैं तो एक तो आपको बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, दूसरा आपकी जो क्रॉप की ईल्ड होती है, सिंगल क्रॉप की ईल्ड, वो रिड्यूस हो जाती है. तो अगर आप मोनोकल्चर करते हैं तो आपका नुकसान क्या है कि अगर एक क्रॉप खराब हो गया तो आपके सारे क्रॉप्स, पूरा की पूरी आपकी जो खेती है वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आपने तो कोई दूसरा क्रॉप लगाया ही नहीं. बट इन इंटरक्रॉपिंग आप बहुत सारे पौधे लगाते हैं, तो ये तो इफेक्ट आपने नलिफाई कर दिया मोनोकल्चर वाला. बट एट द सेम टाइम आप क्योंकि बहुत सारे पौधे लगाते हैं, इसलिए आपकी जो टाइम फ्रेम है फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, दैट बिकम्स अ लिटिल वेरीड, एंड वो पूरी यील्ड आपको नहीं देता है. These are some of the ways in which these practices are being indulged in. Now, I just want to take one more kind of
practice for sustainable agriculture. The rest we will do on another date. I'll do organic farming with you on another date. Organic farming is also important. आज मैं आपको सिर्फ एक और इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बताना चाहती हूँ, which is called zero budget natural farming. It's called zero budget natural farming. In zero budget natural farming, you are not adding any kind of soil cover. You are not adding any kind of pesticide, no artificial fertilizers. You are not preparing the soil with anything except what is organically available to you. ये concept किसने दिया? सुभाष पालेकर. The guy's name is Subhash Palkar. Subhash Palkar says that we need to go for zero budget natural farming. इसमें क्या होगा? कोई इनपुट नहीं होगा, कोई केमिकल नहीं होगा, सिर्फ आप नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें कि अर्थवर्म्स हैं, आपकी काउ यूरिन है, आपका काउ डंक है, आपका कंपोस्ट है, ये सारे आप यूज करेंगे फॉर क्रॉप कल्टिवेशन. इसमें 4 कॉन्सेप्ट्स हैं. आई जस्ट वांट यू टू नो दोस कॉन्सेप्ट्स एंड देन वील ब्रिंग अ end to this class for today. So I'm just adding to you what are those 4 concepts which he's talked about. So Subhash Palkar says that there is something called one इसको वो कहता है बीज अमरूथान. दिस इज कॉल्ड द बीज अमरूथान. तो पहले जो आपका सीड है, जो बीज अमरूथान है, उसको आपने माइक्रोब से कवर किया विद काउ यूरिन एंड काउ डंग. पहले आपने सीड को इससे कवर कर दिया. वापस आपने फिर क्या किया? जीव अमरूथान. अब जीव अमरूथान में आप क्या कह रहे हैं? आपने सॉइल को, यहां पे आपने सीड को काउ यूरिन और प्लस काउ डंग और माइक्रोब्स से कवर किया. यहां जीव अमरूथान में आपने यही काम सॉइल के साथ किया. उसमें कंपोस्ट ऐड किया, काउ डंग ऐड किया, काउ यूरिन ऐड किया और उसको आपने एनरिच किया, मतलब ज्यादा आपने उसकी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाया. उसके बाद आपने क्या यूज किया? कवर क्रॉप्स और मल्चिंग. कवर क्रॉप्स और मल्चिंग ये आपने यूज किया नेचुरली, ताकि क्रॉप्स आपके या प्लांट्स आपके प्रोटेक्टेड रहे. और फिर आपने क्या किया? वाह पासा. ये वर्ड्स ऐसे ही यूज हुए, आप प्लीज इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा. वाह पासा, PHASA, वाह पासा. इसमें क्या है? फास्ट बिल्ड अप ऑफ सॉइल और ह्यूमस और सॉइल एरेशन. मतलब सॉइल पोरस हो गया, इज एबल टू ग्रो मोर क्रॉप्स. तो आपने इसकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा दी. So according to Subhash Palkar, this is called zero budget natural farming, क्योंकि आप बाहर से इसमें कुछ भी यूज नहीं करते और आप सारा पैसा बचा करके ये काम करते हैं. I think that we will call an end to this class today here, because if I teach you more, there are another set of concepts and I don't know how well you are taking it. After I read your feedback, I will come to know how far sustainable agriculture has gone with my students. If there are any questions, please put them in the box. And thank you so much for your time. Thank you.